Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 2nd of October 2020, Friday. Inspiration of the day is the difference between ordinary and extraordinary is that little extra. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Recovery picks up pace. Recently, data released on goods and services tax collection, that is GST collection, for the month of September has indicated that after 6 months of contraction, there is a return to normalcy in economic activities. Why? Because the collection, GST collection of the September month has indicated the significant rebound in terms of revenue. And the robust mop-up may be an outcome of restocking ahead of festival seasons in the month of October as the experts are suggesting. Expert का ये कहना है कि जो GST collection September month में बहुत significantly बढ़ा है, इसका एक सीधा रीज़न आगे आने वाले festive seasons ही हो सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले फेस्टिव सीजन में चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनी हो, चाहे वो कोई और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो, चाहे वो कमर्शियल सेगमेंट हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट सेगमेंट हो, ऑल आर एक्चुअली anticipating the bumper demand or the bumper sale of their product, and because of this only the manufacturing PMI has also increased and the GST collection for the month of September has too increased. So this data of September month comes in the backdrop of a simmering tension between center and state, as we have discussed previously on GST compensation. So there is a tension going on between center government or the state's government on GST compensation. Amid that tension, this data of September month or September month GST collection has indicated or has given the positive hope for government ahead of the council meeting on Monday. GST की जो council meeting Monday को schedule है, उससे पहले इस तरह का data हो सकता है आगे आने वाली मीटिंग में इन दोनों के बीच में, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में जो टेंशन है उसको थोड़ा सा रिलीज़ करे. क्यों? क्योंकि लेस कलेक्शन की वजह से ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट नहीं कर पा रही. अब चूँकि कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ है तो हो सकता है इस बात के चांसेस बढ़े कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कॉम्पनसेट करे कुछ अमाउंट में. ऑन द अदर हैंड स्टेट्स को भी अब कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा कि उनको भी लगेगा कि शायद इकोनॉमी जो है वो रिकवरी की प्रोग्रेस पे, पाथ पे आ गई है, पेस पे आ गई, तो अपकमिंग टाइम में उनका जो कॉम्पनसेशन ड्यू है या जो उनका रिवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, वो सब ओवरकम हो जाए या वो सब कॉम्पनसेट हो जाए. तो GST कलेक्शन स्टूड एट 95,480 crore in the month of September against 86,449 crore in the month of August as per the recent data released by Finance Ministry. And this collection of September month is actually the more collection than the previous year. So 2020 financial year में के September month में जो collection हुआ था वो था approximately 91,916 crore का, और जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कलेक्शन हुआ है वो 95,480 करोड़ का हुआ. तो पिछले ईयर के कंपैरिजन में भी ये कलेक्शन ज़्यादा है. और अगर हम अदर डेटा को देखें, व्हीकल सेल को देखें या मैन्युफैक्चरिंग PMI को देखें, तो सारे इंडिकेटर्स में अब कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है. हालांकि इकोनॉमी बहुत मिक्स फॉर्म में रिएक्ट कर रही है. कल हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो वर्स परफॉर्म कर रहे हैं. आज के न्यूज़पेपर में ऐसे इंडिकेटर्स का डिस्कशन है, ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है जिनका परफॉर्मेंस अच्छी रही है. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ हाई अनसर्टनिटी इन द इकोनॉमी. इफ़ यू रिमेंबर द yesterday discussion, we have discussed the trade deficit is contracting, retail credit growth rate is falling. So number of other indicators into the yesterday newspaper were on the negative trend. On the other hand, in today's newspaper, number of indicators have been discussed that are actually on positive trends, whether it is a vehicle sale, whether it is a manufacturing PMI, whether it is a GST collection or railway traffic. तो अगर हम व्हीकल सेल को देखें तो उसमें भी क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि व्हीकल सेल पिछले ईयर के कंपैरिजन में या प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में अब इंक्रीज़ हो रहा है. अगर कुछ कंपनीज को छोड़ दें तो नंबर ऑफ कंपनीज आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द पॉजिटिव ट्रेंड. सेम एज हैपनिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग PMI.
मैन्युफैक्चरिंग PMI मीन्स मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो उसमें भी हम देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में कॉन्ट्रैक्शन 27.4% तक पहुंच गया था, जो कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है। हालांकि बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन और देखने को मिला था, बट रिसेंटली फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इट हैज़ शोन एक्सपेंशन विद 56.8%। एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अगर 50 से कम होता है PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विस PMI, दैट इंडिकेट्स द कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी, और अगर 50 से ज़्यादा होता है दैट इंडिकेट्स द एक्सपेंशन। तो हम देख रहे हैं 56.8 है इस बार का मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो दैट इज इंडिकेटिंग द क्वाइट गुड expansion in the economy. Although extent is not very impressive, but actually in comparison to previous data, the economy is on expansion as per manufacturing PMI published by IHS Market. However, the new project down by 81% in the Q2 of financial year 21. तो कुछ इंडिकेटर पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेंड शो कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम इंडिकेटर्स दैट आर कंटिन्यूअसली अंडर कॉन्ट्रैक्शन और ऑन नेगेटिव ट्रेंड. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4, रिवाइज्ड PLI स्कीम फॉर बल्क ड्रग्स ऑन द कार्ड्स. प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम PLI स्कीम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने ये डिस्कस किया था रिसेंटली कोविड-19 की वजह से एक एंटी चाइना सेंटीमेंट डेवलप हुआ था ग्लोबल लेवल पे. उस एंटी चाइना सेंटीमेंट्स को कैपिटलाइज करने के लिए स्पेशली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया ने अपनी एक PLI स्कीम, न्यू PLI स्कीम लाई थी, जिसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि चाइना से अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को शिफ्ट करना चाह रही थी, उनको कंट्री ने इनवाइट किया था, इंडिया ने, कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए. अंडर PLI स्कीम वी विल गिव यू नंबर ऑफ कॉम्पनसेशन जस्ट लाइक टैक्स हॉलीडे, टैक्स रेमिटेंसेज एंड अदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स. हालांकि उस PLI में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं आया, बट फिर भी कुछ कंपनीज़ ने जस्ट लाइक एप्पल एंड अदर कंपनीज हैव shown their interest for that PLI scheme and has decided to invest in India by shifting their मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फ्रॉम चाइना टू इंडिया. इससे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी आई थी, बहुत सारे इश्यूज भी हुए थे कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में, जिसको भी हमने डिस्कस किया था. अब क्या है, अब मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नाउ फोकसिंग ऑन द बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग और द API इंग्रेडिएंट्स. जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं. हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है दैट इज़ वेल एस्टैब्लिश एट ग्लोबल लेवल, बेसिकली फॉर जेनेरिक ड्रग्स. जेनेरिक ड्रग्स क्या होती है? बेसिकली जेनेरिक ड्रग्स इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट कंटेन्स द सेम केमिकल सब्सटेंस एज अ ड्रग दैट वॉज ओरिजिनली प्रोटेक्टेड बाई केमिकल पेटेंट्स. तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली जेनरिक जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनको ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस से, ऐसे फार्मूले से तैयार किया जाता है जो कि केमिकल पेटेंट या IPR के तहत उनका पेटेंट नहीं हुआ था. ऑल्दो उनका इफेक्ट पेटेंट जो ड्रग्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग या उनके जैसा ही होता है, बट चूंकि जो ऐसी ड्रग्स, ऐसे केमिकल फार्मूला जिनको बड़ी बड़ी कंपनीज पेटेंट करा लेती हैं, उस पर वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करती हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि वो हाई कॉस्ट हो जाती है ड्रग की, जो कि अफोर्डेबल नहीं होती लोअर सेगमेंट के लिए, मार्जिनलाइज सेगमेंट के लिए. और बहुत सारी ऐसी इसेंशियल ड्रग्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जिन पे R&D किया है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, और उसके बाद जब वो ड्रग एफिशिएंटली डेवलप हो गई तो उस पर्टिकुलर केमिकल फार्मूला को पेटेंट करा लिया. अब जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा R&D पर खर्चा किया है तो वो मार्केट से ही वो पैसा निकालेंगे, जिसकी वजह से जो ड्रग की कॉस्ट रखती हैं, जो प्राइस रखते हैं ड्रग के डिसाइड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि वो अपनी R&D कॉस्ट को भी रिकवर कर लें और एक लार्ज अमाउंट का, एक बहुत अच्छे मार्जिन का प्रॉफिट भी अर्न करें. इससे क्या होता है, इससे ऐसी कोई ड्रग जो कि बहुत इसेंशियल ड्रग होती है एक सोसाइटी के लार्ज सेगमेंट के लिए, जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो कि उस पर्टिकुलर ड्रग को अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, उसके लिए वो ड्रग अफोर्डेबल नहीं रह जाती, और केवल एक ऐसा ही सेगमेंट उसको अफोर्ड कर सकता है जो कि वेल फ्लोरिश्ड है. तो दिस एक्चुअली क्रिएट द डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट.
तो इस डिवाइड को एक्चुअली फिल अप करती हैं जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग उसी सेम इफेक्ट की कॉपीड आप कह सकते हैं ड्रग बनाती हैं, बट उस केमिकल फार्मूला से जो कि पेटेंटेड केमिकल फार्मूला का रिप्लेसमेंट होता है, उसका रेप्लिका नहीं होता, उसका कॉपी नहीं होता एग्जैक्टली क्योंकि पेटेंटेड फार्मूला है तो कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सकती उस फार्मूला को, बट उसके रिप्लेसमेंट में ऐसे सॉल्ट, ऐसे कॉम्पोजिशन को यूज़ करती है कंपनीज जिनका इफेक्ट तो सेम होता है बट उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम नहीं होता। तो जिससे क्या होता है, वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उनका प्रोडक्शन किया जाता है और वो एक मार्जिनलाइज सेगमेंट को और एक ऐसे सेगमेंट को भी उसकी इंश्योरिटी करी जाती है जो कि उसको पेटेंटेड ड्रग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया इज़ बेसिकली द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इन केस ऑफ जेनेरिक ड्रग। इंडिया में बहुत चीप कॉस्ट में या चीप प्राइस में ड्रग्स अवेलेबल हो जाती हैं, स्पेशली मलेरिया जैसी ड्रग्स जो कि बहुत, अगर आप किसी पेटेंटेड ड्रग में जाएंगे, ऐसी ड्रग्स में जो कि पेटेंटेड है, जैसा केमिकल फार्मूला पेटेंटेड है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ड्रग्स के जो प्राइस हैं, मेडिसिन के जो प्राइस हैं, वो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स तक ज़्यादा होते हैं। और वही सेम कॉम्पोजिशन की ड्रग, सेम इफेक्ट की ड्रग आपको जेनरिक स्टोर्स में बहुत कम रेट में अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रमोशन करती है, जन औषधि केंद्र, जहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम जेनरिक ड्रग्स ही अवेलेबल होंगी। अब हम जेनरिक ड्रग्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जेनरिक ड्रग्स को बनाने के लिए एक API नाम का इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API बोलते हैं। और सिर्फ जेनरिक ड्रग्स में नहीं, किसी भी ड्रग को बनाने में एक API होता है, इंग्रेडिएंट होता है, इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और वही कोर इंग्रेडिएंट होता है किसी भी मेडिसिन में जो कि डिज़ायरेबल मेडिकल इफेक्ट जनरेट करता है। और बाकी जो अपार्ट फ्रॉम दिस API सम अदर केमिकल सब्सटेंसेस आर देयर जस्ट लाइक फ्लेवर, शुगर, वो होते हैं। बेसिकली जो केमिकल होता है API, वो ही पर्टिकुलर डिज़ायरेबल हेल्थ इफेक्ट या मेडिसिनल इफेक्ट जनरेट करता है। तो इंडिया के केस में, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारे जेनरिक ड्रग्स की या अदर ड्रग्स की, उसमें जो API यूज़ होता है, वो API का 70% जो हमारा API रिक्वायरमेंट है वो चाइनीज़ कंपनीज पूरे करती है, या हमें कह सकते हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की 70% API की रिक्वायरमेंट चाइना से पूरी होती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में API मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। उतने कम रेट में, उतने एफिशिएंटली, उतने ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में API मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज नहीं हैं जो कि इंडिया की नीड को सेटिस्फाई कर सकें। दैट इज़ वाई इंडिया की जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो API के लिए चाइना पर डिपेंड करती हैं। और रिसेंटली जिस तरह से हमारे चाइना से रिलेशन चल रहे हैं, उसको देखते हुए हमारी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो इस समय बहुत ज़्यादा रिस्क में है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नई प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम लाने वाली है, या हम ये कह सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है PLI, उसको रिवाइज करेगी स्पेशली फॉर बल्क ड्रग्स और इंग्रेडिएंट्स टू मेक मेडिसिन मोर कॉस्ट इफेक्टिवली। तो अंडर दिस PLI स्कीम बहुत सारी कंपनीज को इनवाइट किया जाएगा कि वो इंडिया में आएँ और इंडिया में बल्क ड्रग्स को या API की मैन्युफैक्चरिंग करें, जिसके अंदर उनको बहुत सारे ऑफर्स या टैक्स रिबेट, टैक्स हॉलीडेज या अदर शॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। द टेक्निकल कमेटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन दिस वीक. And if this particular scheme is accepted or recommendations are accepted, then interim scheme may immediately be applied or implemented that would allow manufacturer to claim some incentive when they produce and supply over 40 आइडेंटिफाइड बल्क ड्रग्स। मीन्स ऐसे 40 ड्रग्स आइडेंटिफाई करी गई हैं जिनको इस PLI स्कीम में डाला जाएगा। डेफिनेटली वो जो 40 आइडेंटिफाइड ड्रग्स हैं वो बहुत इसेंशियल ड्रग्स होंगी। तो ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कि 40 बल्क ड्रग्स को या APIs को मैन्युफैक्चर करेंगे, दे कैन क्लेम सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Mahesh Doshi, National President of Indian Drug Manufacturing Association, that is IDMA, said if a certain assurance is given to local drug players on at least 10 to 15
of identified 41 product manufacturing can start right away. It means जो इंडियन ड्रग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है अभी भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कि अगर जो पॉलिसी जो PLI स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्राफ्ट कर रही है वो इमीडिएटली भी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो 40 जो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो 40 ड्रग्स आइडेंटिफाई करी गई हैं, उन ड्रग्स में 10 से 15 ड्रग का प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो सकता है अंडर दैट PLI scheme. He further added that anti-dumping duty or a 50% custom duty to make the Indian product price competitive vis-a-vis China is necessary to encourage people to start producing these bulk drugs. Further, association ने ये भी रिक्वेस्ट करी है गवर्नमेंट से कि जो चाइना से आने वाले ड्रग्स हैं उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए एटलीस्ट 50% की, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है चाइनीज प्रोडक्ट वो थोड़ा सा डिस्करेज हो और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इनकरेज हो उन पर्टिकुलर बल्क ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये PLI स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार ला रही है स्टूडेंट, माइंड इट ऑलरेडी PLI स्कीम थी बल्क ड्रग्स के लिए, बट एज पर द रीसेंट इन्वायरमेंट गवर्नमेंट इस PLI स्कीम को जो बल्क ड्रग्स के लिए PLI स्कीम है उसको रिवाइज कर रही है। इंडस्ट्री सोर्सेज का ये कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने इंटरिम ऑर्डर से इमीडिएटली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दिया तो इंडस्ट्री के पास 2 मेजर एडवांटेज होंगे। पहला एडवांटेज क्या होगा, मैन्युफैक्चरर हैज़ टू एक्चुअली शेल आउट अ lesser amount instead of a larger amount under PLI scheme. तो पहले PLI स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए जो पहले एग्जिस्ट कर रही है उसमें बेनिफिट लेने के लिए कुछ ज़्यादा अमाउंट का शेल आउट करना पड़ता था मैन्युफैक्चरर को। अब चूंकि नई PLI स्कीम है जिसमें रिवाइज है तो उसमें वो थ्रेशोल्ड अमाउंट रिड्यूस कर दिया गया। तो अगर आप कम शेल आउट भी कर रहे हैं देन टू you means manufacturer and will be covered under the new PLI scheme. It means threshold को reduce कर दिया गया है जिससे कि जो और ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं बल्क स्कीम्स के वो PLI स्कीम का बेनिफिट उठा सकें, वो PLI स्कीम के परव्यू में आएँ। और सेकेंड एडवांटेज क्या होगा, दिस PLI स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया would help the manufacturer be prepared to deal with any policy change from China that can expose India's vulnerability as it imports almost 70% of SAPI from China। जैसा कि हम सभी जानते हैं चाइना से जैसे हमारे रिलेशन चल रहे हैं और जिस तरह से हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाइना की कंपनीज पर चाइनीज़ मार्केट पर डिपेंडेंट है, अगर चाइना चाहे तो बहुत ईजिली इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अफेक्ट कर सकता है जस्ट बाय चेंजिंग इट्स API एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो मैन्युफैक्चरर्स का ये भी कहना है इंडियन मैन्युफैक्चरर का कि अगर गवर्नमेंट PLI स्कीम को रिवाइज करती है बल्क ड्रग्स के लिए तो ये एडेड एडवांटेज होगा इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए जो कि बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं कि वो जो चाइना से पॉलिसी चेंज को लेकर जो अभी वल्नरेबिलिटी बनी हुई है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इंडिया भी जान रहा है और चाइना भी जानता है कि इंडिया की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है चाइनीज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर, API कंपनीज पर। तो उस रिलेशन को मिसयूज़ या उस डिपेंडेंसी को मिसयूज़ ना करे ये चाइना और इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल प्लेयर्स हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको निगेटिवली अफेक्ट ना करे, वो रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट जो क्लियर एडवांटेज इंडस्ट्री सोर्सेस ने बताए हैं फॉर दैट न्यू PLI स्कीम, उसके अकॉर्डिंग लार्जर सब मैन्युफैक्चर कवर होंगे अंडर न्यू PLI स्कीम। दूसरा जो रिस्क एसोसिएट कर रहा है चाइना से, चाइना की कोई पॉलिसी चेंज कर देगा एक्सपोर्ट को लेकर के, वो रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा और इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे कैन एक्चुअली ऑपरेट विद मोर कॉन्फिडेंस। सो दिस इज़ द स्नैपशॉट ऑफ करंट PLI स्कीम। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस किए हैं, हालांकि अभी रिकमेंडेशन सेंड हुई है, बहुत ज़्यादा जो नई पॉलिसी में जो रिवीजन हुए हैं बहुत ज़्यादा अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट दिस इज़ द एग्जिस्टिंग PLI स्कीम एंड इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट कि जो भी PLI स्कीम रिवाइज करी जा रही है उसमें और ज़्यादा रिलैक्सेशंस मिलेंगे ड्रग्स मैन्युफैक्चरर को, और ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर ड्रग्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। मैन्युफैक्चरिंग PMI ग्रोज फास्टेस्ट इन 8 years। अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ में ये डिस्कस किया है कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हैज़ गिवन द होप ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल एटलीस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसका एक बेसिक रीज़न है जो
मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसा ही कहना है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिमांड, सरप्लस डिमांड थी, वो इस फेस्टिव सीज़न में और बूस्ट करेगी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी बढ़ेगा, क्योंकि फेस्टिव सीज़न आने वाले हैं इंडिया में, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूरेबल सेक्टर हो, दे ऑल आर एक्चुअली पॉजिटिव एंटिसिपेशन कि बस आने वाले टाइम में डिमांड बहुत ज़्यादा रिवाइव करेगी, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स हैं, दे आर बाइंग द गुड्स और द रॉ मटेरियल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द finished good. However, the job scenario remained bleak due to the social distancing norms. क्योंकि सारी कंपनी जो कि अपनी 100% इवन कैपेसिटी से भी ऑपरेट कर रही हैं, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कल हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के वर्क प्लेस में बहुत सारे गाइडलाइंस इशू किए हैं। वर्क प्लेस में इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग विद इन द फिजिकल प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो जॉब सिनेरियो है वो अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा। जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जॉब्स भी बढ़ेंगी, जॉब भी आएंगी, बट चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ रहा है कंपनीज़ को, उसकी वजह से जो जॉब्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, जॉब जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं दिख रहा है। इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इनटू द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, द PMI rose to an over 8.5 years high of 56.8 in the month of September from 52 in August due to the increased order and production. And again, I am telling you that we have discussed reading above 50 means growth while 1 below denotes a contraction. And it was in the month of August that the manufacturing segment or the sector posted the growth after 4 months of contraction since April due to COVID induced लॉकडाउन। अगर आपको याद हो तो अप्रैल के मंथ में बहुत ज़्यादा फॉल किया था PMI, जो कि मैंने अभी आपको ग्राफ पर भी दिखाया था। तो अप्रैल के बाद में स्लो इंक्रीज देखने को मिला है PMI इंडेक्स में, और सितंबर में अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर हुई है, इवन इन टर्म्स ऑफ 8 years ऑल्सो। ऑल्दो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो इंक्रीज्ड PMI है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग PMI, वेदर इट विल ट्रांसलेट इनटू हायर GDP नंबर्स फॉर द सेकेंड क्वार्टर, इट इज़ एक्चुअली not sure whether it may increase GDP or not, because the methodology which used to calculate the PMI even for manufacturing and services are actually different from the official statistics and other indicators. So जो इंक्रीज दिख रहा है PMI में, मैन्युफैक्चरिंग PMI में, क्या ये सच में GDP को भी इंक्रीज करेगा आगे आने वाले टाइम में, ये कहना अभी सही नहीं होगा। GDP contracted by unprecedented 24% in the first quarter of financial year 21, as we all know. Within that, manufacturing contracted about 40%. Its share in gross value stood at just around 14%. तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया की GDP में 40% है। आप कमेंट में मुझे लिखकर बताएंगे कि एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडियन GDP में, और टर्शरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडियन GDP में। मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अराउंड 40% that manufacturing way into the GDP, और मैन्युफैक्चरिंग में 40% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था into the first quarter of financial year 21, जिसकी वजह से GDP में हमें 24% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था into the first quarter of financial year 21। तो अगर ये PMI बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग PMI एक्सपेंशन की तरफ नंबर्स इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आगे आने वाले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में इंडिया के GDP में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। बट एक्सपर्ट आर सेइंग दैट इट मे नॉट हैपन बिकॉज द मेथडोलॉजी यूज टू कैलकुलेट द PMI एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आर एक्चुअली डिफरेंट, और मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा पार्ट भी नहीं है इंडियन GDP में। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने बताया भी आपको कि इंडिया का जो ग्रोथ पेस रहा है, जो ग्रोथ
पैटर्न रहा है वो अदर इकोनॉमी से थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया प्राइमरी सेक्टर से इमीडिएटली टर्शरी सेक्टर में मूव कर गया। हमारा जो लिंक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर वो ग्रो नहीं कर पाया, वो डेवलप नहीं कर पाया। जनरली कोई भी इकॉनमी कैसे ग्रो करती है, पहले उसका प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करता है, डेवलप करता है, देन वो टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट में आती। इंडिया के केस में क्या हुआ, इंडिया ने डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विस की तरफ मूव कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडिया में है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाया, फ्लॉरिश नहीं कर पाया, इसीलिए इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इसी वजह से इंडिया के मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेगमेंट्स की जो डिपेंडेंसी है वो चाइनीज़ मार्केट या अदर इंटरनेशनल मार्केट्स पर ज़्यादा है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है क्योंकि 14% का कंट्रीब्यूशन है केवल मैन्युफैक्चरिंग का इंडियन जीडीपी में, तो ये जो पीएमआई इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव ट्रेंड, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इंडिया के जीडीपी नंबर्स पर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 5। न्यू प्रोजेक्ट्स डाउन 82% in September quarter. So another negative data, the value of new projects continue to decline in the month of September or in the September quarter, even as the country unlocked the economy in फेजेस। इकोनॉमी अनलॉक हो चुकी है इंटू डिफरेंट फेजेस में, और 15 अक्टूबर से फेज़ 5 स्टार्ट होने वाली है अनलॉक की। इसके बाद भी जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं एज पर द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी वो उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। देयर इज़ अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन और डाउन इनटू द न्यू प्रोजेक्ट नंबर और वैल्यू। 82% का डाउन देखा गया है। सेप्टेम्बर क्वार्टर सॉ नेट प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 0.59 ट्रिलियन एंड दैट इज़ एक्चुअली down 81.9% in comparison to the same period last year. There is also 14.8% lower than June's quarter. जून के क्वार्टर जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर निकला उसके कंपैरिजन में भी लोअर है। जून में इट वाज 0.69 ट्रिलियन, सितंबर में कितना हो गया 0.59 ट्रिलियन। तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी दिस न्यू प्रोजेक्ट वैल्यूएशन और वैल्यू इज डाउन। द कंट्री हैड अनाउंस्ड लॉकडाउन इन मार्च टू कंट्रोल द कोविड-19 पैंडेमिक, जिसकी वजह से जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो उन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डाउन ग्रेड और डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। ऑल्दो अनलॉकिंग जून 8 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी नए जो प्रोजेक्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट सॉ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 29.2% over the June quarter, which valued at 0.31 ट्रिलियन। तो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो नहीं रही हैं, कुछ सेक्टर में हमें डिमांड दिख जाएगी बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। अदरवाइज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि नंबर ऑफ कंपनीज़ ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपेक्स प्लान को पोस्टपोन कर दिया है, जिसकी वजह से और नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो नहीं रही है इंडियन इकोनॉमी में इंस्टेड ऑफ अनलॉक 5.0। और ये भी कहना है कि अभी ये जो पीरियड रहा है ये मानसून का पीरियड रहा है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में भी जो कंस्ट्रक्शन के जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं वो थोड़े से कम रहते हैं। तो इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, पैंडेमिक का इशू वो तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लीक डिमांड और दिस ब्लीक ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द सीजनल इशूज़। ऐसा कह रहे हैं कि जब ये जो मानसून की जो ख़त्म हो जाएगा पीरियड, इसके बाद हो सकता है कुछ रिकवरी देखने को मिले फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, कुछ नए प्रोजेक्ट आए। तो ऑल दीज आर द की टेक अवेज, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, जिसमें कैपिटल गुड्स कंपनीज ने कहा है कि मानसून के बाद हो सकता है प्रोजेक्ट्स में कुछ ग्रोथ देखने को मिले। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कोविड इंड्यूस पैंडेमिक की वजह से और मॉनसून दोनों ने ही रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से 81 और 82% का डाउनग्रेड ट्रेंड देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। न्यू प्रोजेक्ट्स कहाँ? न्यू प्रोजेक्ट्स इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इसका सीधा इंडिकेशन ये होता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी में काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली देयर विल बी द डिमांड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कंस्ट्रक्शन डाउन हो रहा है किसी भी इकोनॉमी में, तो ये इंडिकेट करता है कि आगे आने वाला समय उस इकोनॉमी में रिसेशनरी हो सकता है।
अब देख लेते हैं some other news clips. NSE faces regulators heat for investing in unrelated business. So the SEBI on Thursday levied a penalty of 6 crore on NSE. What is NSE? National Stock Exchange. And why SEBI has imposed this 6 crore of penalty on NSE? For allegedly investing in 6 companies अनरिलेटेड और नॉन इंसिडेंटल टू द स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस. तो एनएसई ने कुछ ऐसी 6 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया था जो कि एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज के बिजनेस से नॉन इंसिडेंटल थी, अनरिलेटेड थी. दीज फर्म्स आर पावर एक्सचेंज इंडिया, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, NSEIT, NSDL, e-government infrastructure, market simplified India and receivable exchange of India. NSE holds held 25 to 80% stake in these entities through its subsidiary NSE Investment एज ऑफ सेप्टेम्बर. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है NSE इन्वेस्टमेंट, जो बेसिकली नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करती है. उसने ऐसे 6 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो कि स्टॉक मार्केट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है. एंड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी, एक्चुअली इट इज द गार्जियन और द प्रोटेक्टर ऑफ द इन्वेस्टर्स राइट. तो उसने इस पर्टिकुलर इशू पर NSE पर 6 करोड़ का पेनाल्टी लगाई है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. जियो फाइबर आर्म्स टू रेज अप्रॉक्सीमेटली 14,700 crore via InvIT offer. So Reliance Industry Limited RIL on Thursday started the process of monetizing its फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क वाया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, जिसको हम InvIT भी बोलते हैं और हमने कई बार डिस्कस किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें कोई भी कंपनी जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहती है, फाइनेंस रेज करना चाहती है, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेट करती है जिसमें नंबर ऑफ कंपनीज पैसा डालती हैं और असेट्स को होल्ड करती हैं. और जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग कर रही होती है, फंड रेज कर रही होती है, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनीज एक बार में पार्टिसिपेट कर लेती हैं. तो 14,700 करोड़ का फंड रेज करना है जियो फाइबर आर्म को, जिसके लिए उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर्मुलेट किया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. मुबादला पिक्स अप 1.4% स्टेक इन रिलायंस रिटेल फॉर ₹6,247 crore. तो दिस इज द 4th इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट 3 weeks. मुबादला पिक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 1.4% स्टेक वर्थ ₹6,247 crore. तो मुबादला ने ऑलरेडी जियो में भी इन्वेस्ट किया था, अब उसने रिलायंस रिटेल में भी इन्वेस्ट किया है. दिस इज़ द 4th इन्वेस्टमेंट. अभी तक जो रिलायंस रिटेल है वो अपना 5.6% का स्टेक ऑफलोड कर चुका है. इससे पहले KKR, सिल्वर लेक और जनरल अटलांटिक ने इन्वेस्ट किया था रिलायंस रिटेल में. एंड स्टूडेंट रिमेंबर, KKR, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक ऑलरेडी रिलायंस जियो में भी स्टेक होल्डर्स हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रेलवेज बैक ऑन ट्रैक, स्टेम्प फॉल इन फ्रेट ट्रैफिक टू 9%. द इंडियन रेलवे ऑन थर्सडे said it arrested the decline in freight traffic to 9% in the half-year period ended on the September at 533 million टन्स. तो बेसिकली जो फ्रेट रेट में डिडक्शन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, फाइनली उस रेलवे ने उस डिडक्शन को, उस ट्रैफिक को, जो फ्रेट के ट्रैफिक में डिडक्शन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, उसको कंट्रोल कर लिया है अप टू 9%. और आगे आने वाले और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है इंडियन रेलवे के फ्रेट ट्रैफिक में, नॉट पैसेंजर फ्रेट, जो कार्गो इधर उधर शिफ्ट होता है उसमें अब कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. द अप्रैल एंड जून क्वार्टर विद 240 empty freight volume was washed out of railways due to the lockdown, registering a 21% decline. तो 21% decline फर्स्ट क्वार्टर में रहा था रेलवे में, वो डिक्लाइन अब सितंबर के मंथ में 9% तक आ गया. इट मीन्स अब रेलवे भी धीमे धीमे ट्रैक पर आ रही है बाय ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, बाय इंक्रीजिंग इनटू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड बाय इंक्रीजिंग इनटू द मैन्युफैक्चरिंग PMI. जब मैन्युफैक्चरिंग PMI बढ़ रहा है, ऑटोमोबाइल की सेल, फेस्टिव सीजन आ रहा है, नंबर ऑफ कंपनीज आर एंटिसिपेटिंग दैट देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स. डेफिनेटली कार्गो की भी शिफ्टिंग होगी, प्रोडक्ट की भी शिफ्टिंग होगी, ऑफलोडिंग होगी, जिसकी वजह से जो डिक्लाइन 21% का था फर्स्ट क्वार्टर में वो रिड्यूस करके 9% तक आ गया. और ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है रेलवे कि इस क्वार्टर के बाद जो फ्रेट ट्रैफिक है वो पॉजिटिवली बढ़ेगा पिछले कुछ मंथ्स के कंपैरिजन में, और जो लॉस हो रहा था रेवेन्यू का वो भी रिकवर हो जाएगा.
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोल इंडिया आउटपुट अप टू 32%, एनटीपीसी क्लॉक्स 13% ग्रोथ। So India national miner, that is Coal India, and state-owned largest power generation, that is NTPC, have reported growth in coal mining and power generation respectively during the second quarter of the current financial year। और वो इतना कम था कि कोल के केस में that was 32%, NTPC के केस में it was 13% ग्रोथ। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जो इंडिया की कोर इंडस्ट्रीज थी उनका आईआईपी जो था वो ऑलरेडी बहुत डिक्रीज़ कर गया था। 8.5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था कोर इंडस्ट्री के आउटपुट में। तो क्यों देखने को मिला? सर क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं आया। कोल इंडिया 32% से ग्रो कर रहा है, 32% का आउटपुट हो रहा है। अब अगर वो 100 प्रोड्यूस कर रहा था, वो इस समय केवल 32 प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से समझिए। एनटीपीसी 13% का प्रोडक्शन है, 30% की कैपेसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कोर सेक्टर में जो हमारा कोर इंडस्ट्रीज थी उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। CIL रिकॉर्डेड 10% ग्रोथ इन बोथ प्रोडक्शन एंड ऑफ टेक इन द सेकेंड क्वार्टर ओवर द सेम लास्ट ईयर। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर इट हैड रिपोर्टेड 0.1% ग्रोथ इन प्रोडक्शन। ऑल्दो पिछले जो क्वार्टर गया है क्वार्टर 1, उसके कंपैरिजन में इट इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड। पिछले अगर हम देखें तो माइनस में इन सब की ग्रोथ रेट थी, जो इस बार एक्चुअली थोड़ा सा रिवाइव कर रही, बट जितना होना चाहिए उतना रिकवरी अभी भी नहीं है। CII ऑफिशियल हालांकि उन्होंने कहा उनके अकॉर्डिंग दिस इज़ द हाइएस्ट ग्रोथ एवर, 31.6% in production during the September and 31.7% in off-take. So supplies to power and non-power sector consumers rack loading also registered highest growth as per the official। तो 32% और 13% की ग्रोथ तो है, बट पावर डिमांड जो है वो अभी भी लो है। और बेसिक इसका रीज़न ये है पावर डिमांड क्यों लो, क्योंकि बहुत सारी कमर्शियल और इंटरटेनमेंट जो कंपनीज़ हैं वो अभी ओपन अप नहीं हुए। अगर हम बात करें सिनेमा हॉल्स की या अदर अम्यूज़मेंट पार्क्स की, तो वो अभी रीओपन नहीं हुए, जिसकी वजह से कमर्शियल सेगमेंट में पावर डिमांड बहुत ज़्यादा लो है। तो कोल के कंपैरिजन में एनटीपीसी में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। ऑल्दो CIL ऑफिशियल्स आर हैप्पी कि उन्होंने अभी तक की हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर करी, दैट इज़ 31.6%। तो अगर हम देखें कि एनटीपीसी का क्वार्टर 1 में -12.1% की ग्रोथ थी, माइनस थी, जिसकी वजह से हमें PMI इसमें हमें अपने कोर इंडस्ट्रियल आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। बट सितंबर में ये 13% तक इंक्रीज़ कर गई है। कोल में या कोल इंडिया में अप्रैल जून जो क्वार्टर 1 था उसमें 10% की ग्रोथ थी, जो कि क्वार्टर 2 में 0.1% की रही है। दैट इज़ द ग्रोथ प्रोडक्शन और growth in production। And all the CII officials and the NTPC officials are very happy and they are actually expecting performance to be more better in upcoming months। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, रिवाइज्ड PLI scheme for bulk drugs on the card। These are the references। If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also join me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook। That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you।